Good morning, 8th class, and welcome to your grammar class, where we have been studying exercises from English Network book of yours. Many we have completed and many are left. This book has a lot of exercises, and it's not possible to complete all exercises here, so some you have to do in home. Okay. Right now we are doing exercise J, where you have to do correct these sentences. You have to correct the sentences. Okay. Correct these sentences. So sentence number 1, correct means they are wrongly written, they have some mistake, you have to correct them. Okay. So what kind of mistake? First is all people in that house are animal lovers. I do one thing, I write directly the correct sentence. Okay. The first one, that question is given wrongly, you have to do correction there. So I write directly the correct answer. What is that? All people in that house are animal lovers. This means a wrong sentence because the is placed on wrong place. Okay. So the correct sentence I am writing. Answer of first. All the people. It should be like this. All the people. Sorry, all the people in that house. Yes. In that house are animal lovers. All the people in that house are animal lovers. Second, they have strangest of the pets. So this will become like this. They have the strangest of pets. Third, as I said, in the garden I saw longest of the snakes. It should be like this. These all are answers. Okay, students. As I sat in the garden, I saw the longest of snakes. Okay. So there are 6 examples. 3 I have done. 3 you have to do. Okay, students. You must try by your own for having good study. Okay. So exercise J's 3 are done. 3 you have to do. Next is change the following sentences into present tense. Rewrite the present tense sentences with a plural subject. मतलब क्या करना है आपको, ये जो sentences है इनको present tense में change करना है. फिर present tense के sentences जो है उनको plural subject के साथ लिखना है. ठीक है. Example दिया हुआ है, he took the python into the bathroom. He takes the python into the bathroom.
they take the python into the bathroom. मतलब सब्जेक्ट जो है एक बार सिंगुलर लेना है, प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है, देन सब्जेक्ट को एक बार प्लूरल लेकर प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज, व्हाट इज सेकेंड एग्जाम्पल? इट इज एक्सरसाइज के. आप लोगों ने टेंस पढ़ा है, अब आपको टेंस का नॉलेज यहाँ पर यूज करना है. ठीक है. देयर वाज वन पैड. This totally based on, this exercise is totally based on tenses. There was one pad which grandfather could not keep for very long. Could not keep for very long. यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है. एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एक बार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट टेंस विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट. Rewrite the present tense with the plural subject. Okay. So there was one pad which grandfather could not keep very long. So इसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा? ये पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस है, इसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए. देयर वॉज का हो जाएगा देयर इज. ठीक है. देयर इज one pad which grandfather's G capital given here is that G is capital, so you have to write in capital letter which grandfather cannot keep for very long. ये हो गया. आपने इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिया. अब बोल रहा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लिखना है. ठीक है. सो सेकेंडली आपको लिखना है देयर आर pads which grandfather cannot keep for very long. ठीक है स्टूडेंट्स. मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का उसको प्लूरल कर दिया. देयर आर पैड्स व्हिच ग्रैंडफादर कैन नॉट कीप फॉर वेरी लॉन्ग. देन थर्ड इज grandmother was tolerant. I think I should take it above so that it could be manageable with the answers. So I will start from here again. Next question, students. Next question is, that is third. Grandmother was tolerant of some birds and animals.
but she did not like reptiles. ग्रैंडमदर जो थी उनको कुछ बर्ड्स एनिमल्स पसंद थे बट रेप्टाइल्स को पसंद नहीं करती थी. यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस. देखो फिर से ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको उसको चेंज करना है. प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? ग्रैंडमदर वॉज का हो जाएगा इज टॉलरेंट of some birds and animals, but she did not like the past tense में simple past tense इसका present tense में convert कीजिए. but she does not, है ना. शी जो है ग्रैंडमदर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हो जाएगा हेल्पिंग और डज नॉट लाइक रेप्टाइल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गए आंसर्स. एक और कर लेते हैं, बाकी के दो आप लोग करेंगे. 4 द पाइथन मेड हर नर्वस. Python made her nervous. ये भी कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल में, है ना. यू हैव स्टडीड टेंसेस तो आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन तो आना ही चाहिए. क्या लिखा हुआ है? पाइथन मेड हर नर्वस. पाइथन सब्जेक्ट मेड V2 एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ओके ऑफ द सेंटेंस. सो पास्ट सिंपल टेंस है, इसको आपको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना, फिर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाकर भी कन्वर्ट करना है. सो पहले लिखेंगे तो पाइथन मेक्स. मेड का क्या हो जाएगा? मेक्स, क्योंकि पाइथन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है. मेक्स हर नर्वस. और सेकेंडली हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लूरल कर देंगे द पाइथन्स मेक्स का क्या हो जाएगा? मेक होगा, क्योंकि एस और ईएस सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही लगता है. ये आपने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जब आपने स्टडी किया सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपने पढ़ा है कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हेल्पिंग वर्ब में एस और ईएस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है ना. सो द पाइथन मेक हर नर्वस. ओके स्टूडेंट्स, सो अब बचे यहाँ पर ओनली 2. दे विल बी डन बाय यू बिकॉज यू मस्ट डू बाय सेल्फ so that you could understand well the exercises. Next is L. Exercise L. Exercise L. It is related with finite verbs. Look at the box where finite verbs is explained. Finite verb is explained. What is finite verb, students? Finite verbs are main verbs of sentence. If we write about this in what you have to write finite. You have to note down these finite verbs are main verbs of
sentence. Okay, it is first information about finite verb, and second is they indicate number. They indicate number, persons, person and tense. So स्टूडेंट्स फाइनाइट वर्ब आपको स्टडी करते समय याद रखना है कि फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब्स होते हैं सेंटेंस के, और वो नंबर यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, इस बात को इंडिकेट करते हैं। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये इंडिकेट करते हैं। एंड टेंस कौन सा है, इसको भी इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि फाइनाइट वर्ब्स जो है इनमें नंबर, पर्सन या टेंस के मुताबिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, द पाइथन क्लाइंब द ट्री। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस। बिकॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड हियर। इसको जब आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, द पाइथन क्लाइंब्स द ट्री। ये कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको मतलब ध्यान रखना है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल या पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, इन सबको इंडिकेट करते हैं। और वो टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, पर्सन के हिसाब से चेंज होते हैं, और सिंगुलर, प्लूरल, नंबर के हिसाब से भी चेंज होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। ठीक है, यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो मैं लिखूंगी वी आर स्टडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बात आपको समझना है कि फाइनाइट वर्ब्स में, फाइनाइट वर्ब्स ही एक्चुअल वर्ब्स होते हैं सेंटेंस के, और फाइनाइट वर्ब्स में टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज। First exercise, that is first question of exercise is, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस करेक्ट करना है। Some sentences may not need correction and they are on page number 17. Have you opened these? You must be. So I is an animal lover. इसको पढ़ते ही आपको दिमाग में क्लिक हो जाता है कि यहाँ पर ये जो वर्ब है वो रॉन्गली लिया गया है। आई के साथ कौन सा वर्ब आएगा, आई एम एन एनिमल लवर। तो ऐसे आपको करेक्शंस करना है इस एक्सरसाइज में। सेकेंड एग्जांपल इज देयर, दे
They was animal catchers. Animal catchers means CATCHERS. Okay. What's mean by catchers? Those who catch the animals. So यहाँ पर देखिए आपको एक मिस्टेक आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ was नहीं आएगा, है ना। वर्ब जो है वो कौन सा रहेगा? दे वर, because this sentence is of past simple tense, so was will be replaced by were because it is wrong word here. Okay, they were animal catchers. ये सब मैं आपको टेंसेस में पढ़ा चुकी हूँ। टेंस मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि टेंस जो है वो बेसिक है। अगर आपको वो क्लियर रहता है तो आप बहुत सारी ऐसी ग्रामर की एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस and the rest questions you will solve by your own. That's it for now. We will end this lesson. We will start new lesson, second lesson in next period, a day with Albert Einstein. Up to that you have to solve these all exercises and complete the incomplete exercises that I have given you in homework. Okay students, bye.